بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل ٹرانسفر کروانے کی فیس میں اضافہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس میں اضافہ 200% سے زیادہ کر دیا گیا ہے، جبکہ گاڑیوں کے رجسٹریشن پر فائلر اور نان فائلر کی شرح بھی بڑھا دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز نے سسٹم میں نئی فیسوں کا اطلاق بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز راحیل علی سے۔ جی راحیل، بتائیے۔ وفات کے دوروں میں جو ہے وہ عوام پر ایک اور بڑا جو ہے وہ عوام کے اپنی وہیکل کی ٹرانسفر میں بھی جو ہے وہ بھاری فیس ادا کریں گے۔ جو نئی فیسیں رکھی گئی ہیں محکمہ ایکسائز کی جانب سے، اس میں موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس کروانے کی فیس میں 200% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 1500 فیصد سے 2000 فیصد تک کی گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں جو ہے وہ فیصد کمی کی گئی ہے، جبکہ گاڑیوں کی رجسٹریشن پر فائلر اور نان فائلر کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس جو پہلے 150 روپے تھی وہ بڑھا کے 500 روپے کر دی ہے۔ رکشے کی ٹرانسفر فیس 1200 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ 1000 cc سے لے کے 1800 cc تک گاڑیوں کی جو ٹرانسفر فیس تھی وہ 2000 سے بڑھا کر 5000 کر دی گئی ہے، اور 1800 cc سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 3000 کے بجائے اب 10,000 روپے جو ہے وہ دی جائے گی، جبکہ کمرشل گاڑیوں کی فیس 4000 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 2000 cc سے زائد گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن کروانے والی بھی جو ہے وہ اب ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ بھاری فیس جو ہے وہ ادا کریں گے۔ 2000 سے 2500 گاڑیوں کی قیمت کا جو ہے وہ 6% فائلر، جبکہ نان فائلر جو ہے وہ 18% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ اسی طرح 2500 سے 3000 cc تک کی گاڑی کا ود ہولڈنگ ٹیکس فائلر کے لیے 8% اور نان فائلر کے لیے 24% تک ہوگا۔ 3000 cc سے زائد گاڑیوں کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ فائلر سے 10%، جبکہ نان فائلر کے لیے 30% جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ تمام ٹیکسز جو تھے وہ فکس تھے، اور 1000 cc سے لے کر 3000 cc اور اس سے زائد گاڑی کا فکس شرح جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ اسی طرح جو چھوٹی گاڑی تھی جس کا 2500 روپے سیٹ کے حساب سے ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا تھا، وہ 1000 cc تک گاڑیوں کا جو ہے وہ ان کی انجن کیپیسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے گا، اس میں عوام کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ لیکن ٹرانسفر فیسوں میں جو ہے وہ تقریباً 100 سے 200% تک اضافہ کر دیا گیا، جبکہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس گاڑیوں کی رجسٹریشن کے وقت دیا جائے گا اس میں جو ہے وہ کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی کافی اضافہ سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے راحیل، اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈالر سستا ہونے کے باوجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ کیا کمپنی کی گاڑیاں 4 لاکھ روپے تک مہنگی کر دی گئیں۔ پہلے سے مہنگی موٹر سائیکلوں کے داموں میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا ایک اور وار، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی قیمت میں مزید اضافہ۔ کیا کمپنی نے گاڑیوں کے دام بڑھا دیے۔ سپورٹیج فرنٹ ویل ڈرائیو 2,50,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 81,90,000 روپے ہو گئی۔ کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائیو 2,50,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 88,20,000 روپے تک پہنچ گئی۔ سپورٹیج الفا کی قیمت میں 2.5 لاکھ روپے اضافہ، نئی قیمت 73 لاکھ روپے مقرر۔ کیا سٹونک ای ایکس پلس کی نئی قیمت 60,50,000 روپے ہو گئی۔ کیا سورنٹو AWD 4 لاکھ روپے مہنگی، نئی قیمت 1,17 لاکھ روپے کر دی گئی۔ موٹر سائیکل ساز کمپنی یاماہا بھی پیچھے نہ رہی، موٹر سائیکلوں کی قیمتیں 24 سے 29,000 تک بڑھا دی۔ YBZ 24,000 اضافے سے 3,80,500 روپے کی ہو گئی۔ YBZ DX 26,500 روپے مہنگی، نئی قیمت 4,08,000 روپے مقرر۔ YBR 27,500 روپے اضافے سے 4,19,000 روپے کی ہو گئی۔ YBRG 29,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 4,36,000 روپے مقرر۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں غلہ منڈیوں کی آڑھتیوں، آٹا ڈیلرز اور چکیاں بغیر فوڈ گریڈ لائسنس پر چلانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آڑھ کے پاس 100 بوری گندم، آٹا ڈیلرز اور چکی مالکان کے پاس 100 بوری آٹا یومیہ ہونا لازم ہے، جبکہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف محکمہ خوراک خاموش ہو چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ ہزاروں ڈیلر فوڈ گرین لائسنس کے بغیر کام کرنے لگے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں غلہ منڈیوں کی آڑتیں اور چکیاں بغیر لائسنس چلانے کا انکشاف۔ محکمہ خوراک نے صرف 3,151 فوڈ گرین لائسنس جاری کیے۔ آٹا چکیوں کے 846 فوڈ گرین لائسنس کا اجرا ہوا۔ لاہور ڈویژن میں 209 آٹا چکیوں کو فوڈ لائسنس کا اجرا ہوا۔ شہر میں 481 چکیاں غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں۔ لاہور میں 159 آڑتیوں اور ڈیلرز کو فوڈ گرین لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ باغبان پورہ،
जल्लो, रायबेंड, शाहदरा के व्यापारी लाइसेंस हासिल न कर सके। मुल्तान रोड मंडियों के व्यापारियों के पास भी फूड ग्रीन लाइसेंस नहीं। रावलपिंडी डिवीजन में 23 चक्कियों और 232 आड़तियों को फूड ग्रीन लाइसेंस का इजरा हुआ। गुजरांवाला डिवीजन में 38 चक्कियों और 250 आड़तियों को लाइसेंस मिल सका। इसी तरह फैसलाबाद डिवीजन में 12 चक्कियों और सिर्फ 2 आड़तियों को लाइसेंस का इजरा हुआ। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक शहर में 144 आड़ती बगैर लाइसेंस के गंदम का कारोबार कर रहे हैं। रवा सीजन में फूड ग्रीन लाइसेंस न रखने वाले व्यापारी गंदम जखीरा नहीं कर सकते। तमाम व्यापारियों को वार्निंग जारी कर दी गई है। डायरेक्टर महकमा खुराक शाहजेब सईद का कहना है कि ख्वाहिशमंद व्यापारियों के लिए फूड ग्रीन लाइसेंस का इजरा होगा। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का राज बरकरार, सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गईं। फल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। ब्रायलर सस्ता होकर भी गरीब की जेब पर भारी है। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, सब्जियां, फल और ब्रायलर गोश्त पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में बैंगन 90, करेले 100, पालक 60 रुपए फी किलो है। फूल गोभी भी 140, भिंडी 100, शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो मिल रही। अरवी 160, खिया तोरी 100 और खीरे 110 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। फलों में सेब 450, आलू बुखारा 350 रुपए फी किलो, जबकि केले दर्जा अव्वल 240 और दर्जा दोम 180 रुपए फी दर्जन है। अवाम कहते हैं महंगाई ने अशिया जरूरिया की खरीदारी मुश्किल बना दी है। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, लेकिन खुदाया चेक बैलेंस शुरू करें। डॉलर नीचे आ गया है, इतना सोना आ गया है, लेकिन लोग सब्जी, फल, चिकन का, बड़े गोश्त का रेट कम नहीं कर रहे। सब्जियों को हाथ नहीं लग रहा, हर सब्जी महंगी है। और रह गई फल की बात, आड़ू है वो 250 रुपये किलो है, आम है, जो चीज़ फल भी है वो भी महंगा, गरीब बंदा नहीं खा सकता। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए कमी के बाद 608 रुपए फी किलो पर आ गया। आटा किल्लत का शिकार और चीनी अदम दस्तयाब। महंगाई के सताए अवाम सस्ते आटे और चीनी से महरूम होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की महदूद सप्लाई, जबकि चीनी 3 हफ्तों से आई ही नहीं है। अवाम कहते हैं कि हुकूमत ने रिलीफ दिया है तो वो मिलना भी चाहिए। अवाम को सस्ते स्टोर्स से भी रिलीफ ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत, जबकि चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। सारिफीन सस्ते आटे के हुसूल के लिए एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगाने पर मजबूर। सस्ते आटे की सप्लाई इंतहाई महदूद, बेशतर सारिफीन आटे से महरूम हैं। सस्ती चीनी गुज़श्ता 3 हफ्तों से सप्लाई न हो सकी। शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कई दिन से आटा नहीं मिलता। चीनी 20 रोज से नहीं मिल रही। हुकूमत सब्सिडी देती है तो अशिया की मुकम्मल सप्लाई भी दी। आटा भी लेते हैं, 650 का आटा है, ये कहते हैं पूरा 1000 रुपया दें फिर आपको आटा मिलेगा। अपनी मर्जी से ये सौदा देते हैं। आटे की गुंजाइश है अगर थैला लेने की, तो ये अपनी मर्जी से ना दूसरी चीज़ें डाल देते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। ओपन मार्केट में चीनी 125 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 91 रुपए फी किलो है। मार्केट में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए और स्टोर्स पर 648 रुपए मुकर्रर है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, काहना के इलाके वार्ड नंबर 9 में 2 रोज से ट्रांसफार्मर ख़राब है। बिजली की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की भी किल्लत है। इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे जफर इकबाल जी। जी बिल्कुल, काहने का इलाका वार्ड नंबर 9, ट्रांसफार्मर 2 रोज से खराब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उनका ये कहना है कि 2 बिजली की वजह से घरों में पानी नहीं है और इंतहाई परेशानी का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार लेस्को सब डिवीजन काना में जाके शिकायत दर्ज करवाई है। लेस्को वाले कहते हैं कि थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन ठीक कर देते हैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। और उनका ये कहना है कि लेस्को के आला हुकाम इस बात का नोटिस लें और उनका ट्रांसफार्मर को ठीक करके बिजली बहाल की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर इकबाल, आपने आगाह किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया गया है। MD वासा का कहना था कि तमाम एमरजेंसी कैंप्स पर अमला यूनिफॉर्म में ड्यूटी देगा। तमाम हैवी मशीनरी को हमा वक्त तैयार और मुकम्मल फाल रखा जाए। ख़राब होने वाली मशीनरी को फौरी स्टैंड बाई मशीनरी से तब्दील करने की हिदायत की गई है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया गया। MD वासा का कहना था कि तमाम इमरजेंसी कैंप्स पर अमला यूनिफॉर्म में ड्यूटी देगा, जबकि तमाम हैवी मशीनरी को हम वक्त तैयार और मुकम्मल फाल रखा जाएगा।
आलमगीर तरीन की मैयत जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर पहुंचा दी गई है। जहांगीर तरीन से ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। ऑन चौधरी, फिरदौस आशिक, अवान पीर जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी भी जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंच गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर जो जहांगीर तरीन के भाई हैं आलमगीर तरीन, उनकी डेड बॉडी को लाया गया है अब से कुछ देर कबल। और यहाँ पर जो समाजी और सियासी जो शख्सियात हैं उनकी आमदोरफ्त इस वक्त जो जहांगीर तरीन है उनके साथ अफसोस के लिए जारी है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो सुबह वसूल हुई थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जो जहांगीर तरीन के भाई हैं आलमगीर तरीन, वो गुलबर्ग में रिहाइश पजीर थे और अकेले रिहाइश पजीर थे, जिनकी जो डेड बॉडी है वो सुबह उनकी मुलाजमा की जानिब से जो है उसको देखा गया और उसके बारे में बताया गया कि उनको जो है मुबैना तौर पर उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर अपनी जो ज़िंदगी है उसका खात्मा किया। ताहाल उसके बाद जो है उसकी आलमगीर तरीन की जो डेड बॉडी है उसको जनरल हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम में भी ये चीज़ बताई गई कि गोली का जो निशान है वो सिर के दाएँ साइड पर है। अलबत्ता अभी जो पिस्टल और उसके अलावा जो मुबैना तौर पर एक ख़त मिला है जो कि आलमगीर तरीन साहब का आखिरी ख़त है, उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जिसके बारे में ये कहना है कि 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसमें ये पता चलेगा कि आया ये खुदकुशी थी या फिर ये कत्ल का कोई वाक़या है। अभी तक ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जो है वो इसको खुदकुशी जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक बराह रास्त किसी भी किस्म की जो मुस्बत ख़बर है वो नहीं दी गई, क्योंकि ये सानिया ऐसा है, ये वाक़या ऐसा है कि तरीन फैमिली जो है वो इस वक्त शदीद गम के अंदर मुब्तला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिरदौस आशिक अवान जो हैं उन्होंने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की जहांगीर तरीन के घर के बाहर। उनका ये कहना था कि एक मखसूस पार्टी है जो कि गलत खबरें फैला रही है और इस पर भी अपनी सियासत जो है वो चमका रही है, जबकि ये बहुत गलत बात है कि एक घर में जो है वो सानिया पेश आया और उसको भी जो है वो सियासी तौर पर चमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मामला जो है किसी और के साथ होता तो कभी भी इसको जो है वो सियासी। बहुत शुक्रिया, हमजा अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। लाहौर में मजंग टीचिंग हस्पताल से मुल्हिका शादी हॉल की दीवार गिर गई। बच्चों समेत जख्मी 14 अफराद गंगाराम हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मैरिज हॉल मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बाराने रहमत जहमत बन गई। मजंग टीचिंग अस्पताल से मुल्हिका मैरिज हॉल की दीवार अस्पताल के शेड पर गिर गई। बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। CCTV फुटेज के मुताबिक अस्पताल के शेड के नीचे मरीजों के लवाहिकीन बैठे थे। दीवार गिरने से प्लास्टिक का शेड मुकम्मल टूट गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 10:30 बजे के करीब ना ये दीवार गिरी है, 7 हमसायों की दीवार, ये 4 इंची दीवार थी। तो ये हमारे जो वेटिंग एरिया था इसमें हमने क्योंकि फाइबर ग्लास का उसमें छत डाली हुई थी वेटिंग एरिया पे। जो जख्मी हुए उनमें से एक माइनर इंजर्ड है और बाकी जो है ना उनकी हेड इंजरीज हुई हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया। मैरिज हॉल को सरबमुहर कर दिया गया। दाता गंजबख्श टाउन इंतजामिया ने मैरिज हॉल मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। लाहौर में रेलवे कॉलोनियों के मकानात बोसीदा और खस्ता हाल हो गए हैं। मानसून की शदीद बारिशों में कॉलोनी के रहायशियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत। शदीद बारिशों में रेलवे कॉलोनीज के मुतादिद क्वार्टर्स की छतों से पानी टपकने लगा। बोसीदा छतें किसी भी वक्त अपना आप छोड़ देंगी। रहायशियों के सर पर खतरा मंडलाने लगा। रेलवे दर्जा चहारम और B कैटेगरी के मुलाजमीन इंतहाई खस्ता हाल रहायशों में रहने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक रेलवे के अक्सर फ्लैट अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। अरसा दराज से सरकारी घरों की मुरम्मत ही नहीं करवाई गई है। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज अहमद शहजाद और दीगर मुलाजमीन का कहना है कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों से सालाना 20,000 से 50,000 रुपए मेंटेनेंस कटौती की जाती है। महकमे की जानिब से रेलवे अफसरान पर तो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन छोटे मुलाजमीन के घरों की तामीर और मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं देता। अरसा दराज हो गया, कई सालों से जो है हमारे क्वार्टरों की रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं की जा रही। जब भी हम इनसे दरख्वास्त देते हैं इनको इंजीनियरिंग स्टाफ को कि जी हमारे क्वार्टरों की मरम्मत की जाए, तो आगे से ये जवाब आता है कि फंड नहीं है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी हमारी तनख्वाहों से जो करोड़ों अरबों रुपया कट चुका है, अब तक साल से कट रहा है, तो वो अमाउंट आखिर कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आज 22-23 साल से हम पैसे कटवा रहे हैं और हमारे क्वार्टर वही घोड़ों के रहने वाले ही हैं। इन पर रुपया पैसा नहीं लगा करोड़ों रुपये कटवाने के बावजूद। लेकिन अगर आप DS ऑफिस चले जाएं तो DO साहब का कमरा देख लें, उस पर कई लाख रुपए लग गया है। उनके बच्चों को जो कल पैदा हुए हैं अभी
उनको खिलाने के लिए डीएस हाउस में एक कमरा सजाया गया है, वहाँ पे टॉय रखे गए हैं कि उनके बच्चे खेलें। गुज़श्ता रोज़ भी मिस्ट्री शाह के इलाके में रेलवे क्वार्टर की छत गिरने से रेलवे मुलाजिम अपनी बीवी और बच्चों समेत जाँ बहक हो गया था। शहर में 73 मिलीमीटर बारिश का तेज़ स्पेल। बारिश के बाद निकासी आब के अमल का जायज़ा लेने के लिए इंतज़ामिया के दौरे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नशेबी इलाकों में निकासी आब के अमल का जायज़ा लिया। MD वासा ने मुख्तलिफ अंडरपासेस के दौरे किए। शहर में मौसलाधार बारिश का एक और स्पेल। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 64, लक्ष्मी चौक में 52, गुलशन रावी में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लक्ष्मी चौक समेत शहर के दीगर इलाकों के दौरे किए। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम नशीबी इलाकों और मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने के अहकामात दिए। बारिशों के दौरान कलमा अंडरपास को डूबने से बचाने के लिए भी इंतजामिया मुतहरिक। CBD और वासा की मशीनरी कलमा अंडरपास पहुंचा दी गई। MD वासा ने गौसल आजम अंडरपास, करतबा चौक, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों के दौरे किए। MD वासा ने निकासी आब ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत की। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि कलमा अंडरपास से निकासी आब के लिए RC पंप्स लगा दिए गए हैं। हमने तमाम पॉइंट्स क्रिटिकल अपने क्लियर कर दिए थे, क्योंकि बाद पॉइंट्स पे सिस्टम इनएडिक्वेट है, स्मॉल साइजेस हैं, प्राइमरी सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से उस पर टाइम लगता है। MD वासा ने बारिश के दौरान नशीबी इलाकों से जल्द अज जल्द निकासी आब मुमकिन बनाने की हिदायत की। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यूँ तो बारिश में लाहौर का हर इलाका ही पानी पानी हो चुका है, मगर जनरल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की गलियां, बाजार और चाइना स्कीम के इलाकों में पानी कुछ ज़्यादा ही खड़ा हो गया है। वासा इंतजामिया की गफलत के सबब अब्र रहमत जहमत बन गई। निश्तर टाउन के इलाके में होने वाली 60 मिलीमीटर बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर जनरल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। चूंकि अमर सदों के बेशतर इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया। अयूब रोड और मुल्हिका गलियों में 1 से 1.5 फुट तक पानी का बसेरा। B ब्लॉक चाइना स्कीम ताहाल बारिशी पानी में डूबा हुआ है। चाइना स्कीम मॉडल बाजार और बच्चों का प्ले लैंड पानी पानी हो गया। वासा का शोबा O&M निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल ना कर सका। चाइना स्कीम के वासा ऑफिस के इर्द गिर्द की गलियां और घरों में भी बारिशी पानी जमा हो गया। MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से मुतालिका डायरेक्टर्स को निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में तेज़ बारिश के बाद लेस्को की फिर वही कहानी। 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली 16 घंटे से ज़ायद तक बंद रही। गुज़श्ता रोज़ तेज़ आंधी से मुतासरा सिस्टम बहाल ना हो सका था। आज होने वाली बारिश ने लेस्को के तरसीली निज़ाम को मज़ीद ख़राब कर दिया। बारिश और तेज़ आंधी से मुतअद्दिद पोल्स और हाई ट्रांसमिशन लाइनों पर दरख्त जा गिरे, जिससे लेस्को की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। रही सही कसर, लेस्को को स्टाफ की शदीद कमी ने निकाल दी। सार्फिन को अजियत का सामना करना पड़ा। 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली 16 घंटे से बंद है। निगरान वज़ीर पंजाब बिलाल अफजल ने हिदायत की है कि जारी तरक्याती स्कीमों को तरजीहन पहले मुकम्मल किया जाए। तमाम तरक्याती मंसूबों में मुकर्ररा म्यार को यकीनी बनाया जाए। बिलाल अफजल ने मज़ीद कहा कि जंगलात और माहौलियात की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगरान वज़ीर को जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलाल अफजल ने कहा कि निकासी आब का निज़ाम काफ़ी पुराना हो चुका है, इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत का नए बजट में सेहत, तालीम और ज़राअत की तरक्की पर ज़्यादा फोकस है। निगरान वज़ीर ने फ़ॉरेन फंडेड मंसूबों के मुकर्ररा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम। DC लाहौर का बड़ा फैसला सामने आया है। बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीटर लाहौर भी अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाजत नहीं होगी। माहाना सैकड़ों अफराद बगैर हेलमेट हादसात में जख्मी होते हैं। हेलमेट इस्तेमाल न करने के बायस हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। अवामी मुफाद के लिए पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। सीटर लाहौर मुस्तनसर फिरोज शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर आगाही और वार्निंग बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शहरी कहते हैं जब हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सब हेलमेट पहनेंगे। अच्छी बात है, हेलमेट पहनना ही चाहिए। हेलमेट एक सेफ्टी के लिए है, लोग पहनते ही नहीं है। चलें किसी बहाने लोग हेलमेट पहनेंगे तो सही ना। हम खुद खरीदेंगे भाई, पहनेंगे, कानून तो कानून है।
कानून से बालातर कोई भी नहीं है। सेफ्टी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। ऐसा कानून होगा तो फिर ही लोग अमल करेंगे। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी भी अहम शाहराह पर नहीं आने दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी मोहतसिब ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी मोहतसिब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी 10 जुलाई को एयरपोर्ट का दौरा करेगी। वफाकी मोहतसिब के हुक्म पर 3 रुकनी टीम लाहौर एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन करेगी। वफाकी मोहतसिब के सीनियर एडवाइज़र अहमद फ़ारूक, डीजी मोहतसिब रियाज हमीद चौधरी और असिस्टेंट एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब गुलजार अहमद बट खसूसी टीम में शामिल हैं। वफाकी मोहतसिब की खसूसी टीम 10 जुलाई को दिन 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। टीम मौके पर अवामी शिकायत सुनकर ज़रूरी अहकामात जारी करेगी। शहर में 5 बड़े जुलूसों और सैकड़ों मजालिस के लिए मुहर्रम और हराम में इंतजामात के हवाले से 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफा हैदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसीलों का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। कमेटी रूट्स की क्लियरेंस और सहूलियात देने की जिम्मेदार होगी, जबकि रूट्स पर पैच वर्क और गटर के ढक्कन का मुकम्मल ऑडिट होगा। फौरी मिसिंग होल्स और रास्तों के खड्डों पर पैच लगाने के अहकाम जारी किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मजालिस और रूट्स पर जुलूसों के वक्त का तयन करने की जिम्मेदार होगी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रोज़ाना रूट्स का दौरा करके जायज़ा रिपोर्ट डीसी ऑफिस जमा करवाने के पाबंद होंगे। निगरान वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहीम हसन मुराद कहते हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक लाइफ स्टॉक सेक्टर को तरक्की देंगे। फार्मिंग को जदीद इंडस्ट्री में मुंतकिल करके करोड़ों डॉलर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहीम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के हुकाम ने शिरकत की। इब्राहीम मुराद का कहना था कि दूध और गोश्त की बरामदात के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मीट एंड डेयरी प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के तवस्सुत से मीट एक्सपोर्ट में इजाफा यकीनी बनाएंगे।